بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 10ویں جماعت کی آسان سندھی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود نظم نمبر 3 نیکی کی بلند خوانی یعنی ریڈنگ کریں گے اور اسے تفصیل سے سمجھیں گے، اور اس نظم کے مشقی سوالات، نظم کا مرکزی خیال، اشعار کی تشریح اور کثیر و انتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس نظم کا نام ہے دعا۔ ہے نظم جو شاعر حکیم فتح محمد سیوانی ہے۔ اس نظم کے شاعر حکیم فتح محمد سیوانی ہیں۔ ہو سیوڑ جے عباسی خاندان میں سن 1880 عیسوی جے اوائل میں جاؤ۔ آپ سیون کے عباسی خاندان میں سن 1880 کی شروعات میں پیدا ہوئے۔ عربی فارسی جی مکمل تعلیم حاصل کرے حکمت جو دھندو اختیار کیائیں۔ عربی اور فارسی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد حکمت یعنی طب کا پیشہ اختیار کیا۔ کچھ وقت کھاں پوئے سیون چھدے کراچی میں دواخانوں کھولیائیں۔ کچھ عرصے کے بعد سیون شہر کو چھوڑ کر کراچی میں دواخانہ قائم کیا۔ سن 1942 عیسوی میں وفات کرے وہ۔ سن 1942 عیسوی میں انتقال کر گئے۔ مختلف قومی، سیاسی، مذہبی، ادبی تحریکن میں سرگرم تھی حصوں ورتائیں۔ مختلف قومی اور سیاسی، مذہبی اور ادبی تحریکوں میں سرگرم ہو کر حصہ لیا۔ جمعیت علماء جو رکن ہو، جمعیت العلماء کے رکن تھے۔ سندھی نثر نظم میں کترائی کتاب لکھیا تھس۔ سندھی نثر اور نظم میں کئی کتابیں آپ نے لکھی۔ کمال زوال، حیات النبی، میرن جی صاحبی سندس مشہور کتاب آہن۔ کمال اور زوال، حیات النبی اور میرن جی صاحبی آپ کی مشہور کتابیں ہیں۔ چلتے ہیں اس نظم کی تشریح کی طرف۔ اساں جے دین ایماں کے سلامت رکھ خدا بندہ۔ اس میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دین اور ایمان کو سلامت رکھ، بچا جی تو مسلمانن جی عزت آبرو ہر جا، تو مسلمانوں کی عزت اور آبرو کو ہر جگہ محفوظ فرما۔ اساں کے دے خدا توفیق، طاقت، ہمت این حشمت۔ یہاں جو یہ لفظ حقیقت لکھا ہوا، یہ پرنٹنگ کی مسٹیک ہے، اصل میں حشمت لفظ ہے۔ اے اللہ ہمیں طاقت، ہمت اور اے اللہ ہمیں توفیق دے، طاقت کی، ہمت کی اور بردباری کی۔ اسامہ کے اگن جیڑا عجب انسان کر پیدا، ہم میں سے پہلے جیسے لوگوں کو پیدا کر۔ سری دنیا میں رکھ اسلام اکھے تو اوج عزت ساں۔ اے اللہ پوری دنیا میں تو اسلام کو بلندی عطا فرما۔ خدا اسلام جے کلمے سندو تو شان رکھ بالا۔ اے اللہ تو اسلام کے کلمے کی شان کو ہمیشہ بلند رکھ۔ ہمیشہ شال دنیا میں جھنڈو اسلام جو جھولے۔ اے اللہ دنیا میں ہمیشہ اسلام کا پرچم لہراتا رہے۔ جتے بھی سو ونی پہنچے رہے قائم اتے برپا۔ جہاں بھی یہ پرچم جائے وہاں پر ہمیشہ قائم اور دائم رہے۔ اساں جی قوم تھی مسکین، اساں جی قوم تھی غمگین۔ اے اللہ ہماری قوم مسکین ہو چکی ہے، ہماری قوم غمگین ہو چکی ہے۔ تو تہ جو شال حامی تھیں، کریں تہ کھے تو بے پرواہ۔ اے اللہ تو اس قوم کی حمایت کرنے والا بن جا اور اس قوم کو تو ہمیشہ کے لیے ہر چیز سے بے پرواہ کر دے۔ اساں جی قوم کے آزاد کر قرضن ای مرزن کھاں۔ اے اللہ ہماری قوم کو قرضوں سے اور بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما۔ اساں جی قوم کے آباد ہیں دلشاد کر مولا۔ اے اللہ ہماری قوم کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھ۔ دفع سب انتظاری کر، پرے سب بے قراری کر۔ اے اللہ ہر قسم کا انتظار اور ہر قسم کی بے چینی و بے قراری اس کو ختم کر دے۔ خزاں ماں تو بہاری کر، تتھیوں سرسبز این سرہا۔ اے اللہ اس قوم کو خزاں سے نکال کر بہار عطا کر تاکہ ہماری قوم سرسبز و آباد ہو جائے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس نظم کی کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف، جس میں پہلا سوال ہے ہیٹھین سوالن جا جواب دیو، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ پہلا سوال ہے شاعر اللہ تعالیٰ کھاں کیڑی دعا تھو گھرے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا مانگتے ہیں؟ اس کا جواب ہے شاعر اللہ تعالیٰ کھاں دعا گھرے تھو تا خدا بندہ اساں جے دین ایمان کے سلامت رکھ۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دین اور ایمان کو سلامت رکھ، اسلام کے اوج عزت لے، اسلام کو عروج اور عزت عطا فرما۔ اساں جی قوم کے آزاد کر قرضن مرزن آئیں ہر مصیبت کا۔ ہماری قوم کو قرضوں، بیماریوں اور ہر قسم کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ شاعر اللہ تعالیٰ کھاں دین ایمان کے سلامت رکھن
इस्लाम खे ओज ऐं इज़त सां रखणु ऐं क़ौम खे कर्ज़नि मर्ज़नि खां आज़ाद करण जी दुआ थो घुरे। शायर अल्लाह ताला से दीन और ईमान की सलामती के साथ साथ इस्लाम की बुलंदी और इस्लाम की इज़्ज़त और अपनी कौम को बीमारियों से कर्ज़ों से आज़ाद करने की दुआ मांगते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, इस्लाम अजे कलमे लाए शायर कहिड़ी दुआ थो घुरे। इस्लाम के कलमे के लिए शायर कौन सी दुआ मांगते हैं? इसका जवाब है, शायर इस्लाम जे कलमे के बुलंदो बाला करण जी दुआ थो घुरे। शायर इस्लाम के कलमे को बुलंदो बाला करने की दुआ मांगते हैं। तीसरा सवाल है, कौम जे लाए शायर जे दिल में कहिड़ा सवाल था उभरन। कौम के लिए शायर के दिल में कौन से सवालात उभरते हैं? इसका जवाब है, शायर जे दिल में कौम जी गमगीनी, मिसकीनी, कर्ज़न मर्ज़न ऐं बदहाली जा सवाल उभरन था। शायर के दिल में कौम की गमगीनी, मिसकीनी, कर्ज़े, बीमारियां और बदहाली के सवालात उभरते हैं। अजीज़ तलबा, उसके बाद अगला सवाल है, हेठिन लफ्ज़न जा जमा लिखो। मंदरजा झेल अल्फाज वाहिद के जमा लिखने हैं। कॉलम की एक तरफ मैंने वाहिद, कॉलम की दूसरी तरफ जमा लिख दिया है। पहला लफ्ज़ इज़्ज़त, इसकी जमा होगी इज़्ज़तों। दूसरा लफ्ज़ हिम्मत, इसकी ज़िद होगी हिम्मतों। तीसरा लफ्ज़ झंडो, इसकी ज़िद होगी झंडा। चौथा लफ्ज़ कौम, इसकी ज़िद होगी कौमों। उसके बाद लफ्ज़ बहारी, इसकी ज़िद होगी बहारियों। उसके बाद सवाल है, इसमन जे पुठियां के पछाड़ियों गॾिजनि थियूं त उहे ज़मीर ख़ास जो कम ॾियनि थियूं। इसम के आखिर में कुछ अल्फाज को लगाया जाता है जिनके जोड़ने के बाद वो ज़मीर ख़ास के तौर पर काम आती हैं। जीअं भाणम मुंहिंजो भा, यहाँ मिसाल दी गई है भाणम, जिसके माना होंगे मुंहिंजो भा यानी मेरा भाई। दूसरी मिसाल है खादम, मुँह खादो यानी मैंने खाया। तभी अहिड़ा के ॿिया मिसाल ॾियो। आप इस तरह की मज़ीद मिसालें दें। मैंने कॉलम की एक तरफ इस्म और दूसरी तरफ उनके मायने मैंने लिख दिए हैं और दूसरी तरफ ज़मीर ख़ास लिख दिए हैं। पहला लफ्ज़ आयम, उसका ज़मीर ख़ास होगा माँ आयस यानी मैं आया। दूसरा लफ्ज़ व्यम, उसका ज़मीर ख़ास होगा माँ व्यस यानी मैं गया। तीसरा लफ्ज़ कयम, इसका ज़मीर ख़ास होगा मुँह कयो यानी मैंने किया। उसके बाद लफ्ज़ पीतम, इसका ज़मीर ख़ास होगा मुँह पीतो यानी मैंने पिया। अजीज़ तलबा, उसके बाद चलते हैं इस नज़म के मरकज़ी ख़याल की तरफ। हिन नज़म में शायर हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी अल्लाह ताला खां दीन ऐं ईमान जी सलामतीअ बाबति दुआ घुरे थो। इस नज़म में शायर हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवानी अल्लाह ताला से दीन और ईमान की सलामती के बारे में दुआ मांगते हैं। शायर फरमाए थो त या अल्लाह असां मुसलमाननि जी इज़्ज़त ऐं आबरू के बचाए। शायर फरमाते हैं कि ए अल्लाह, हम मुसलमानों की इज़्ज़त और आबरू को महफूज फरमा। असां खे पंहिंजे नवाज़ियल इंसाननि वांगर तौफ़ीक़, हिम्मत ऐं हशमत अता फरमाए। हमें अपने इनाम याफ्ता बंदों की तरह तौफ़ीक़, हिम्मत और बुर्दबारी अता फरमा। इस्लाम जे कलमे के दुनिया में बुलंद व बाला फरमा। इस्लाम के कलमे को दुनिया में बुलंदी और उरूज अता फरमा। पूरी दुनिया में परचम में इस्लाम लहराता रहे। असी मुसलमान एक गरीब ऐं गमगीन कौम आहियूं। हम मुसलमान एक गरीब और गमगीन कौम हैं। असां खे बेपरवाह बनाए, हमें बेनियाज कर दे। कर्ज़न मर्ज़न का आज़ाद, आबाद ऐं दिलशाद कौम बनाए। कर्ज़ों से, बीमारियों से आज़ाद करके हमेशा शाद और आबाद कौम बना। असांजी दिलनि के सुकून अता फरमाए, हमारे दिलों को सुकून अता फरमा, आमीन। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद चलते हैं इस नज़म के अशार की तशरीह की तरफ, जिसमें पहला शेर है, असांजे दीन ईमा के सलामत रख खुदावंदा, बचाए तू मुसलमानन जी इज़्ज़त आबरू हर्जा। किसी भी नज़म के शेर से पहले उसका हवाला लिखा जाएगा। हवाले की हेडिंग देंगे हवालो। ही नज़म दुआ जे नाले, ही नज़म दुआ जे उनवान असांजे आसान सिंधी किताब 9 जी 3 नंबर नज़म है। यह नज़म दुआ के उनवान से हमारी नवी जमात की आसान सिंधी किताब की तीसरी नज़म है। हिन जे शायर जो नालो हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी है। इस नज़म के शायर का नाम हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवानी है। ये सिंधी बोलीअ जे अवाइली शायरनि मां हिकु मशहूर शायर हो। आप सिंधी ज़बान के इब्तदाई शोरा में से एक मशहूर शायर थे। चलते हैं इस शेर की तशरीह की तरफ। हेडिंग देंगे समझाणी, जिसके माना है तशरीह। हिन शेर में शायर साहब फरमाए थो त ए मुंहिंजा रब, तूं ही असां कमज़ोर मुसलमाननि जे दीन ईमान के मज़बूत रखी सघीं थो। इस शेर में शायर साहब फरमाते हैं कि ए मेरे अल्लाह, तू ही हम कमज़ोर मुसलमानों के दीन और ईमान को मज़बूत रख सकता है। असां ॾाढा कमज़ोर रहा आहियूं, हम बहुत कमज़ोर रहे हैं।
اے मुंहिंजा रब, ए मेरे अल्लाह, असां मुस्लमान दुनिया जे जंहिं बि कुंड कुड़छ में हुजूं उते तूं असांजी इज़्ज़त व आबरू जी हिफाज़त फरमाए। हम मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने और ख़ित्ते में हों, तू हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा। तू असांखे पंहिंजी रहमत जे साए में रख, तू हमें अपने साए रहमत में रख। के बाद इस नज़म का दूसरा शेर है, असांखे ॾे ख़ुदा तौफ़ीक़, ताक़त, हिम्मत ऐं हशमत, असां मां के अॻियनि जहिड़ा अजब इंसान कर पैदा। समझाणी यानी तशरी, हवाला पहले बयान किया जा चुका है। चलते हैं तशरी की तरफ। हिन शेर में शायर साहब फरमाए थो त ए मुंहिंजा रब, असां सभिनी जा पैदा कंदड़, तूं असां कमज़ोर ऐं हीणनि मुसलमाननि खे हिम्मत ऐं ताक़त दे। इस शेर में शायर साहब फरमाते हैं कि ए हमारे रब, ए हमारे पैदा करने वाले, तू हम कमज़ोर लाचार मुसलमानों को हिम्मत और ताक़त अता फरमा। असां जे अंदर अगूणनि मुसलमाननि जहिड़ो जोश जज्बो पैदा कर। हमारे अंदर पहले जैसे मुसलमानों का सा जोश और जज्बा पैदा कर। असां के अहिड़ो रोबदार ऐं बहादुर बनाए जो गैर ॾिसी घबराइजी वञनि। हमें ऐसा रोबदार और बहादुर बना कि गैर हमें देख कर घबरा जाएं ऐं उन्हनि ते असां मुसलमाननि जी हशमत तारी थी वञे और उन पर हम मुसलमानों का रोब तारी हो जाए। चलते हैं इस नज़म के तीसरे शेर की तरफ। सॼी दुनिया में रख इस्लाम खे तूं ओज इज़्ज़त सां, खुदा इस्लाम जे कलमे संदो तूं शान रख बाला। इसकी तशरीह में फरमाते हैं, हिन शेर में शायर साहब फरमाए थो त ए मुंहिंजा रब, असां सभिनी जा ख़लक़णहार, तूं दीन इस्लाम के पूरी दुनिया में सभिनी मज़हबनि खां उत्तम ऐं आला रख। इस शेर में शायर साहब फरमाते हैं कि ए हमारे रब, ए हम सब के खालिक, तू दीन इस्लाम को पूरी दुनिया में तमाम मज़ाहिब से सबसे आला और अरफा रख। दुनिया के हर ख़ित्ते में कलमे जो विर्द हुजे, दुनिया के हर ख़ित्ते में कलमा इस्लाम जारी हो जाए। चारई तरफ़ ला इलाहा इल्लल्लाह जी गूंज हुजे, हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह की गूंज हो। ए मुंहिंजा रब, मुसलमान जिते भी हुजे उते तूं उन जो शान बुलंद उबाला रख। ए मेरे रब, मुसलमान जहाँ भी हों वहाँ तू उनकी शान को बुलंद उबाला रख। हर जगह मुसलमान जी कदर ऐं अहमियत हुजे, हर जगह मुसलमान की कदर व अहमियत हो। इसके बाद चौथा शेर है, हमेशा शाल दुनिया में झंडो इस्लाम जो झूले, जिते भी सो वञी पहुँचे रहे कायम उते बरपा। इसकी तशरीह में फरमाते हैं, हिन शेर में शायर साहब फरमाए थो त ए मुंहिंजा रब, असां सभिनी जा परवरदिगार, दुनिया जे जंहिं भी हिस्से में दीन इस्लाम पहुँचे उनखे उते तक़वियत पहुँचाए, तहफ़ुज़ दे। इस शेर में शायर साहब फरमाते हैं कि हमारे रब, ए हम सब के परवरदिगार, दुनिया के जिस हिस्से में भी दीन इस्लाम पहुँचे वहाँ उसे तक़वियत पहुँचा कर तहफ़ुज़ अता फरमा। इस्लाम जो झंडो हर हंध लहराईंदो रहे, परचम इस्लाम हर जगह लहराता रहे, सभिनी खां ऊंचो रहे, सबसे ऊंचा रहे, परचम इस्लाम सबसे ऊंचा रहे। ए मुंहिंजा रब, जिते भी दीन इस्लाम जी तबलीग थिए, ए मेरे रब, जहाँ भी दीन इस्लाम की तबलीग हो उते दीन इस्लाम के हमेशा जलाए कायम ऐं दाइम रख। वहाँ दीन इस्लाम को हमेशा कायम व दाइम रख ऐं उनखे अञा वधाईंदो रह और उसे मज़ीद तरक्की अता फरमा। पांचवा शेर है, असांजी कौम थी मिस्कीन, असांजी कौम थी गमगीन, तू तंहिंजो शाल हामी थी, करी तंहिंखे तूं बेपरवाह। इसकी तशरीह में फरमाते हैं, हिन शेर में शायर साहब फरमाए थो त ए मुंहिंजा रब, हीअ असांजी मिस्कीन कौम हर तरफ़ खां गमनि ऐं परेशानियुनि में घिरियल आहे। इस शेर में शायर साहब फरमाते हैं कि मेरे रब, ये हमारी मिस्कीन कौम हर तरफ गमों और परेशानियों में घिरी हुई है। चैनी तरफ लोगों मसला ही मसला हैं, चारों तरफ सिर्फ मसाइल ही मसाइल हैं। ए मुंहिंजा रब, तू इन जो निगहबान थी, उन जी हिफाजत फरमाए। ए मेरे रब, तू इनकी निगहबानी करके उनकी हिफाजत फरमा। उनके मिस्कीनी गमगीनी न सुख ही सुख हुजे। मेरी कौम को मिस्कीनी और गमगीनी नहीं बल्कि सुकून ही सुकून हो। खुशियों हुजन, खुशहाली हुजे, खुशियाँ हों, खुशहाली हो। परेशानियुनि खां निजात फरमाए, उनके हर दुख ऐं दर्द का बेपरवाह बनाए छॾ। परेशानियों से निजात अता फरमा कर इस कौम को हर दुख दर्द से बेनियाज बना दे। शेर नंबर 6, असांजी कौम के आज़ाद कर कर्ज़नि ऐं मर्ज़नि खां, असांजी कौम के आबाद ऐं दिलशाद कर मौला। चलते हैं शेर की तशरीह की तरफ। हिन शेर में शायर साहब फरमाए थो त मुंहिंजा रब, ही मिस्कीन निमाणी कौम कर्ज़नि में ॿुॾी पई आहे। इस शेर में शायर साहब फरमाते हैं कि ए मेरे रब, ये मिस्कीन और कमज़ोर कौम कर्ज़ों में डूबी हुई है। बीमारियों उनखे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां मुख़्तलिफ़ तरफ़नि खां वकोड़े वयूं आहिनि।
بیماریاں اس قوم کو مختلف طریقوں اور مختلف اطراف سے گھیر چکی ہیں۔ اے मुंहिंजा रब तूं इन्हीअ निमाणी मक़रूज़ क़ौम खे कर्ज़नि मर्ज़नि ऐं परेशानियुनि खां आजो फरमाए। ए मेरे रब तू उस कमज़ोर और मक़रूज़ कौम को कर्ज़ों से, बीमारियों से और परेशानियों से आज़ादी अता फरमा। उनखे खुशहाल ऐं आसूदो फरमाए। इस कौम को खुशहाल और आबाद फरमा। उन जे मुखड़े ते मुर्क ॾे। इस कौम के चेहरे पर मुस्कुराहट अता फरमा। सातवां शेर है दफ़ा सब इंतज़ारी कर, परे सब बेकरारी कर, ख़िज़ामा तूं बहारी कर, त थियूं सरसब्ज़ ऐं सरहा। हिन आख़िरी शेर में शाइर साहब फरमाए थो त ए मुंहिंजा रब तू ही असांजो वाहिद वसीलो ज़रियो आहीं। इस आखिरी शेर में शायर साहब फरमाते हैं कि ए मेरे रब तू ही हमारा वाहिद वसीला और ज़रिया है। तू ही असां मुसलमाननि जूं सभु बेक़रारियूं ऐं बेचैनियूं दूर करे सघीं थो। तू ही हम सब मुसलमानों की बेक़रारियाँ और बेचैनियाँ दूर कर सकता है। तू असांजो ख़ल्क़ कंदड़ हिफ़ाज़त कंदड़ आहीं। तू हमारा ख़ालिक और हिफ़ाज़त करने वाला है। ए मुंहिंजा रब असां तुंहिंजी इबादत करियूं था, तोखां ही घुरूं था। ए मेरे रब हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं। असांजे वतन खे बहारी दे, खुशहाली, अमन, खुशियों और शादमानियों दे। हमारी वतन को खुशहाली, अमन, खुशियाँ और शादमानियाँ अता फरमा। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद चलते हैं इस नज़म के कसीर इंतखाबी सवालात की तरफ। हेठ ॾिनल मुमकिन जवाबनि मां सही जवाब चूंडे लिखो। मंदरजा झेल मुमकिन जवाबात में से सही जवाबात का चुनाव करें। पहला सवाल है नज़म दुआ जो शायरा है। नज़म दुआ का शायर है ऑप्शन अलिफ हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी, ऑप्शन बे हकीम सईद अहमद, ऑप्शन जीम नूर अहमद, ऑप्शन दाल नूर मोहम्मद। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन अलिफ हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी। दूसरा सवाल है हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी सेवण जे डेश ख़ानदान में जाओ। हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी सेवन के डेश ख़ानदान में पैदा हुए। ऑप्शन अलिफ सैयद, ऑप्शन बे बुखारी, ऑप्शन जीम अंसारी, ऑप्शन दाल अब्बासी। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन दाल अब्बासी। तीसरा सवाल है हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी डेश सन में जाओ। हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी डेश सन में पैदा हुए। ऑप्शन अलिफ 1887, 1887, ऑप्शन बे 1881, 1881, ऑप्शन जीम 1880, 1880, ऑप्शन दाल 1890, 1890। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन जीम 1880, 1880। उसके बाद सवाल है हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी अरबी फ़ारसी जी मुकम्मल तालीम हासिल करे हिकमत जो डेश इख्तियार कयाई। हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवानी ने अरबी फ़ारसी की तालीम मुकम्मल करने के बाद हिकमत का डेश इख्तियार किया। ऑप्शन अलिफ तरीक़ो यानी तरीका, ऑप्शन बे पेशो यानी पेशा, ऑप्शन जीम धंधो यानी कारोबार, ऑप्शन दाल कोडियो यानी शौक़। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन जीम धंधो। के बाद सवाल है हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी कुछ वक्त खां पोइ सेवण छॾे देश में दवाखानो खोलियो। हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवानी ने कुछ अरसे के बाद सेवन को छोड़कर देश में दवाखाना खोला। ऑप्शन अलिफ लाड़काणे, ऑप्शन बे आमरी, ऑप्शन जीम दादू, ऑप्शन दाल कराची। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन दाल कराची। इसके बाद सवाल है हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी देश ईस्वीअ में वफ़ात करे वियो। हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवानी देश ईस्वी में वफ़ात कर गए। ऑप्शन अलिफ 1742, ऑप्शन अलिफ 1742, 1742, ऑप्शन बे 1842, 1842, ऑप्शन जीम 1842, ऑप्शन दाल 1924, 1924। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन जीम 1842। उसके बाद सवाल है हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी सियासी, मजहबी, अदबी तहरीकन में देश हिस्सों वरताई। हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवानी ने सियासी, मजहबी, अदबी तहरीकों में देश हिस्सा लिया। ऑप्शन अलिफ पूरो यानी पूरा, ऑप्शन बे थोरो यानी थोड़ा, ऑप्शन जीम घणो यानी ज़्यादा, ऑप्शन दाल सरगरम। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन दाल सरगरम। उसके बाद सवाल है हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी देश जो रुकन हो। हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवानी देश के रुकन थे। ऑप्शन अलिफ जमियत तुलबा, ऑप्शन बे जमियत इस्लाम, ऑप्शन जीम जमियत उलमा, ऑप्शन दाल जमियत शोरा। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन जीम जमियतुल उलमा। उसके बाद सवाल है हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी सिंधी नसर ऐं नज़म में देश किताब लिखिया अथस। हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवानी ने सिंधी नसर और नज़म में देश किताबें लिखी हैं। ऑप्शन अलिफ थोड़ा यानी कम, ऑप्शन बे घना यानी ज़्यादा, ऑप्शन जीम तमाम घना यानी बहुत ज़्यादा, ऑप्शन दाल केतराई यानी कई।
اس کا درست جواب ہے آپشن دال کیترائی۔ اس کے بعد سوال ہے اساں دین ایماں کے سلامت رکھ ڈیش، ہمارے دین ایماں کو سلامت رکھ ڈیش۔ آپشن الف اللہ تعالیٰ، آپشن بے مسافر، آپشن جیم خداوندہ، آپشن دال رب العزت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم خداوندہ۔ اس کے بعد سوال ہے اسامہ کے اگن جہڑا ڈیش کر پیدا، ہم میں سے پہلے جیسے ڈیش پیدا کر۔ آپشن الف بہادر انسان، آپشن بے کمزور انسان، آپشن جیم عجب انسان، آپشن دال سوریہ یعنی طاقتور۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم عجب انسان۔ اس کے بعد سوال ہے سجی دنیا میں رکھ ڈیش کے تو اوج عزت ساں، پوری دنیا میں ڈیش کو تو اوج اور عزت عطا فرما۔ آپشن الف اسلام، آپشن بے مذہب، آپشن جیم دین، آپشن دال مسلم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف اسلام۔ اس کے بعد سوال ہے ہمیشہ شال دنیا میں جھنڈو ڈیش جو جھولے، ہمیشہ دنیا میں ڈیش کا پرچم لہراتا رہے۔ آپشن الف ایمان، آپشن بے کلمے یعنی کلمہ، آپشن جیم تقوی، آپشن دال اسلام۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال اسلام۔ اس کے بعد سوال ہے اساں جی قوم کے ڈیش قرضن ای مرزن کھاں، ہماری قوم کو ڈیش کر قرضوں اور مرضوں سے۔ آپشن الف برباد کر، آپشن بے دلشاد کر، آپشن جیم خوشحال کر، آپشن دال آزاد کر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال آزاد کر۔ اس کے بعد سوال ہے خزامہ تو ڈیش کر تتھیوں سرسبز ای سرہا، خزاں سے تو ڈیش کر تاکہ ہم سرسبز و شاداب ہو جائیں۔ آپشن الف سردی، آپشن بے بہاری، آپشن جیم گرمی، آپشن دال عید۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے بہاری۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔